Today we will do operators in Visual Basic. In Visual Basic, operator is a programming element that specifies what kind of operation needs to perform on operands or variables. Operands क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं a plus b is equal to 6. तो a और b क्या है? Operands है जिनको हम एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. For example, an addition operator in Visual Basic is used to perform the sum operation on operands. मतलब अगर हम एडिशन कर रहे हैं a प्लस b, तो a प्लस b प्लस क्या है? ऑपरेटर है, और a और b क्या है? ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर एक सम का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं. Visual Basic operator types. In Visual Basic, different types of operators available. Those are arithmetic operators, assignment operators, logical and bitwise operators, comparison operators, concatenation operators. Visual Basic arithmetic operators. Arithmetic operators जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम मैथमेटिकल पार्ट इसमें इंक्लूड करेंगे. मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. In Visual Basic, arithmetic operators are useful to perform the basic arithmetic calculations like addition, subtraction, division, etc. based on our requirements. The following table lists the different types of arithmetic operators available in Visual Basic. This is our table in which here the operator is mentioned plus it will add two operands. A एंड बी हमारे टू ऑपरेंड्स हैं. इनको ये प्लस करके हमें रिजल्ट देगा 9 एंड दिस विल फॉर्म एन एक्सप्रेशन. माइनस इट विल सब्ट्रैक्ट टू ऑपरेंड्स. ए और बी हमारे टू ऑपरेंड्स हैं, इनको माइनस करके ये रिजल्ट देगा 3. मल्टीप्लीकेशन इट विल मल्टीप्लाई टू ऑपरेंड्स. डिवाइड इट डिवाइड्स टू नंबर्स एंड रिटर्न अ फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट. ये भी डिवाइड का ही सिंबल है. इट डिवाइड्स टू नंबर्स एंड रिटर्न एन इंटीजर रिजल्ट. दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट दिखा रहा है, ये फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट दिखाएगा, और ये आपको इंटीजर रिजल्ट दिखाएगा. नेक्स्ट इज मोड. इट डिवाइड्स टू नंबर्स, दो नंबर्स को डिवाइड करेगा एंड रिटर्न्स ओनली द रिमाइंडर. क्या रिजल्ट देगा ये हमें? जो रिमाइंडर है वो हमें रिजल्ट में दिखाएगा. और ये क्या है? रेज टू दी पावर. स्केयर करना मतलब जो भी वैल्यू है वो आपकी डबल मल्टीप्लाई हो जाती है. इट रेजेज अ नंबर टू द पावर ऑफ अनदर नंबर. मतलब अगर जैसे a रेज टू पावर 2 है तो a इंटू ए करके दिखाएगा. नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स विच आर आल्सो नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर्स. In Visual Basic, comparison operators are useful to determine whether the defined two operands are equal, greater than or less than. कि equal है, बड़ा है, छोटा है, ये देखने के लिए हम relational operators को use करते हैं based on our requirements. The following table lists the different types of comparison operators available in Visual Basic. Now we will see the table. First is greater than. It will return true if right operand greater than left operand. अगर आपका जो right operand greater है a से तो वो क्या रिटर्न करेगा? true. नहीं तो रिटर्न करेगा false. It will return true if right operand is greater than or equal to the left operand. अगर आपका right operand greater है, बड़ा है, या equal to है, क्योंकि इसमें greater than के साथ equal to का साइन भी लगा हुआ है. नेक्स्ट इज स्मॉलर देन. इट विल रिटर्न ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड. मतलब जो लेफ्ट ऑपरेंड है, अब लेफ्ट ऑपरेंड की तरफ माउथ ओपन है, तो ए अगर बड़ा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. नेक्स्ट इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू. इट विल रिटर्न ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड. Next is equal to. It will return true if both operands are equal. अगर दोनों operands equal हैं तो ये true करेगा, वरना false.
then greater than or smaller than. It will return true if both operands are not equal to. It means they are not equal. Is also used. It will return true if two object references refer to the same object. अगर एक ही object को refer कर रहे हैं तो ये true return करेगा is. Next is not. It will return true if two objects references refer to different objects. अगर दोनों references different है तो वो is not use करेगा, और अगर same है, same object को refer कर रहे हैं तो वो is use करेगा. Next is logical operator, which is also known as bitwise operators. In Visual Basic, logical or bitwise operators are useful to perform the logical operations between two operands. दो operands के बीच में अगर logical relation है तो उसे हम use करते हैं, like and, or, etc. Based on our requirements, the logical bitwise operators will always work with boolean expression true or false, कि true है या false है, and return boolean values. The following table lists the different types of logical bitwise operators available in Visual Basic. अब हमें पता है कि ये boolean expression देता है, या तो true होगा या false. And में क्या है, it will return true if both operands are non-zero, मतलब तभी ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. और इट विल रिटर्न ट्रू इफ एनी वन ऑपरेंड बिकम्स अ नॉन जीरो. अगर एक भी वैल्यू नॉन जीरो है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. मतलब जैसे हमें ऊपर दिया हुआ है, ए क्या है, ट्रू है, बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया है क्योंकि हमें एंड के लिए दोनों ऑप्शंस क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है. और इसमें क्या है, एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ऊपर हमारी वैल्यू ए की ट्रू दी हुई है तो इसने ट्रू रिटर्न किया है. नेक्स्ट इज नॉट. इट विल रिटर्न द रिवर्स ऑफ अ लॉजिकल स्टेट. जैसे हमने ए की वैल्यू ऊपर ट्रू ली थी तो क्या लेगा ये, ट्रू, और नॉट लिया तो इसने फॉल्स लेगा ए की वैल्यू. ठीक है. Logical statement state that means if both operands are non-zero then it will return false. कब false return करेगा, जब दोनों values क्या हैं, non-zero. Next is XOR. It will return true if any one of expression and expression 2 evaluates to true. अगर दोनों में से एक भी true हो जाता है तो क्या करता है, ये true return करता है. Next is and also. It will perform the short circuiting logical operation and return true if both operands evaluate to true. अगर दोनों क्या है, true है तो ये true return करेगा. Or else it will perform the short circuiting logical operation and return true if when one of operand evaluates to true. अगर एक true है तो ये true return करेगा. Next is false. It will determine whether an expression is false or not. ये determine करके बताएगा कि ये expression false है या नहीं है. is true. Similarly जैसे ये false बताता है तो ये expression क्या बताएगा, क्या determine करेगा, true, कि हमारी statement true है या नहीं है. Next is Visual Basic concatenation operators. In Visual Basic, concatenation operators are useful to concatenate defined operands based on our requirements. Concatenation का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को add करना. The following table lists the different types of concatenation operators available in Visual Basic. नीचे हमें दो तरह के concatenation operators दिए गए हैं जो कि हम VB में use कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट इज एम्परसेंड का सिंबल है. इसमें क्या है, हमें ए और बी दो वेरिएबल्स दिए गए हैं. ए में वैल्यू है हेलो की और बी में है वर्ड की. इट विल कंकेटिनेट गिवन टू एक्सप्रेशंस. ए एम्परसेंड बी क्या करता है, दो वर्ड्स को इकट्ठे कंकेटिनेट कर देता है, मतलब जोड़ देता है. ये प्लस नहीं करता, एडिशन नहीं करता. नेक्स्ट इज प्लस. इट कैन बी यूज टू ऐड टू नंबर्स और कंकेटिनेट टू स्ट्रिंग्स.
अगर ए और बी में न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो उसको क्या कर देता है, सम कर देता है, मतलब ऐड कर देता है। और अगर उसमें स्ट्रिंग वैल्यू है तो वो उनको कंकेटिनेट कर देता है, मतलब ऐसे जोड़ देता है, आपस में इकट्ठा कर देता है। Visual Basic Assignment Operators. In Visual Basic Assignment Operators are useful to assign a new value to the operand. अगर हमें कोई नई न्यू वैल्यू असाइन करनी है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, तो 10 की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन हो जाती है। The following table lists the different types of assignment operators available in Visual Basic. Let's see the table. फर्स्ट इज जो हम कॉमनली यूज करते हैं, इक्वल टू, इट विल असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल और प्रॉपर्टी। जैसे अभी मैंने आपको बताया a इज इक्वल टू 10, तो 10 क्या है, जो भी राइट हैंड साइड पे उस वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन हो जाती है। a एक वेरिएबल है और 10 वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी। प्लस इज इक्वल टू, ये एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहते हैं हम इनको, ये हम यूज करते हैं, इसका मीनिंग होता है a इज इक्वल टू a प्लस 10। तो हम इसको लिखते हैं a प्लस इज इक्वल टू 10, मतलब इधर a भी प्लस हो रहा है तो हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। इट विल परफॉर्म द एडिशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड्स एंड असाइन अ रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। मतलब a प्लस इज इक्वल टू 10 लिखने पे a के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो a प्लस 10 जाएगी। नेक्स्ट इज माइनस इक्वल टू, जैसे प्लस ऑपरेट होता है वैसे ही माइनस का ऑपरेट होगा। a माइनस इक्वल टू 10, मतलब a इज इक्वल टू a माइनस 10। पहले a की वैल्यू माइनस होगी 10 में, फिर वो a में असाइन हो जाएगी। इसी तरह से हमारा है मल्टीप्लिकेशन का। इट विल परफॉर्म अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड एंड असाइन अ रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। सिमिलरली डिवीजन के जो दोनों मेथड्स हमने पढ़े हैं, इट विल परफॉर्म अ डिवीजन ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड एंड असाइन द फ्लोटिंग पॉइंट। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट करेगा और इसमें क्या करेगा, इंटीजर रिजल्ट आपका असाइन करेगा। नेक्स्ट रेज टू पावर का साइन है। इट विल रेज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू द पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड असाइन द रिजल्ट बैक टू द वेरिएबल। मतलब a के अंदर a रेज टू पावर 10 की वैल्यू डाल देगा। एम्परसेंड इक्वल टू, it will concatenate a string expression to a string variable and assigns the result to the variable. a ampersand is equal to word, तो इसने क्या किया, a is equal to a ampersand word। a और word की, a में जो भी वैल्यू है उसको word के साथ concatenate करके a पे assign कर देगा। नेक्स्ट, it will move the left operator, this is a shift operator, bit values to the right based on the number of positions specified by the second operator। ये क्या करता है, a को शिफ्ट कर देगा by 2, मतलब 2 पॉइंट्स आगे कर देगा। Similarly, it will move the left operand bitwise value to the left based, इसमें right based मूव करता है, इसमें लेफ्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पोजीशंस स्पेसिफाइड बाय द सेकंड ऑपरेंड। और इसको यूज करने का मेथड जैसे हमने ऊपर वाला यूज किया वैसे ही नीचे इसको यूज करेंगे।